Today we will going to discuss very important topic, that is how to calculate specific rotation, and then going to solve the questions of previous year examination, NET examination. So see, in order to getting specific rotation, one formula is there. You focus on that formula, how to calculate specific rotation. So one formula is there. Optical activity, certain calculations are there in the optical activity. So specific rotation of, that is, of any solution, see, this is calculated by using this formula. See, specific rotation is nothing but rotation of 1 gram per ml concentrated solution when path length is 1 decimeter or 10 centimeter at particular wavelength. So that is we call specific rotation. It is calculated by this formula. Alpha specific is equal to alpha observed upon C concentration into L path length. See, alpha here, alpha D, sometimes it is written alpha D. So that indicate particular at wavelength of D lines of sodium, D lines of sodium length. Okay. This is a specific rotation at wavelength of D line of sodium length, specific rotation. C is concentration, generally measured in gram per ml. And L is path length. Here L is equal to path length. Ten centimeter is equal to 1 decimeter. This is conversion. Alpha observe is a observe rotation. एक ये फॉर्मूला आपको यूजफुल रहेगी in order to calculate a particular specific rotation of any type of solution. Now, second very important formula is the optically purity, or you can say enantiomeric axis. Optical purity, percentage of optical purity, कौन सा फॉर्म है वो ज्यादा है R और S में. It is also called enantiomeric axis. Okay, enantiomeric axis is calculated by, दो enantiomer में कौन सा enantiomer ज्यादा है, is calculated by using this formula alpha observe upon alpha specific into 100. This is called percentage of percentage purity. For example, आपके पास, see, this is also called enantiomeric axis. Okay, enantiomeric axis, or you can say percentage of purity. So अगर आपके पास कोई ऐसा solution है, sample है with 40%, suppose you are having say sample having 40% enantiomeric axis of R फॉर्म है वो ज्यादा है, and remaining 60% is a racemic mixture. Then what is the molar ratio of R and S? What is total amount of R? Total amount कितना आएगा? R फॉर्म कितना होगा? Total amount, that is R. R कितना होगा और S कितना होगा? Enantiomeric axis R फॉर्म ज्यादा है 40% एज कम्पेयर टू S. इसका मीनिंग ये हो गया
कि आर जो ये 60% है, इसका दो पार्ट पड़े, इसका दो पार्ट हो जाएगा। 60% है वो रेसेमिक मिक्सचर है, मीन 60 में से 30% आर फॉर्म आएगा, 30% एस। ओके, 60% जो है उस, ओके, उसमें रेसेमिक मिक्सचर है, मीन्स दोनों हो गए आर और एस। अभी आर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 40% एस कंपेयर टू एस। तो इसमें आप 40% और ऐड कर दो तो टोटल आर कितना मिलेगा मिक्सचर में? 70%। 70% एंड 30% है वो एस है। तो इसी तरह से आप मोलर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट मोलर रेशियो, परसेंटेज ऑफ आर एन एस। तो ये दो तीन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है एनेंशियोमेरिक एक्सिस के लिए। एक एनेंशियोमेरिक एक वो भी है कि परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल इज इक्वल टू 100% हो गया। दोनों का कुल कंपोजिशन जो है वो 100% रहेगा। ओके, परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल इज ऑलवेज 100%. So enantiomeric axis is equal to, this is the formula. Now we're going to see, take some example. For example, see, you are given Mandelic acid. Suppose certain examples are given. For example, you are given one example is like 28 milligram Mandelic acid was dissolved in 28 gram Mandelic acid was dissolved in 1 centimeter cube of ethanol, and the solution placed in a 10 centimeter long polarimeter, path ले दे दिया, long polarimeter cell, an optical rotation of minus form है, minus 4.35 anti-clockwise है, was measured लेफ्ट साइड रोटेशन हो गया इसलिए माइनस लिखा है, at 20 degree Celsius temperature with light having wavelength 589 nanometer. So what is specific rotation of acid? चलो आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की है वो पहले यहाँ पे लिख लो। अल्फा ऑब्जो दे दिया है, कितना दिया है अल्फा ऑब्जो? दैट इज minus 4.35. Good. And another thing is path length L is given. What is L? L is equal to 10 centimeter, means how many decimeter? Is equal to 1 decimeter. Another thing is concentration. Concentration is already given. See, 28 milligram dissolved in 1 centimeter cube. 1 centimeter cube means 1 ml. That means 28 milligram per ml. 1 ml है इसलिए। अब 28 मिलीग्राम है, उसका ग्राम करना है तो 10⁻³ से डिवाइड करो, सो ग्राम पर ml आ जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है। So see again very simple formula, alpha specific is equal to alpha observed on C into L
that is minus 4.35 upon 0.028 into 1, that is minus 155. In this way you can calculate specific rotation. It's a very easy calculation. Okay, in this way you can calculate specific rotation. Another example is similar example. Suppose question is asked like that: calculate optical rotation, that is observed rotation. Calculate optical rotation from the given data. Calculate optical rotation from given data. सपोज आपको डेटा ऐसे प्रोवाइड किया है, स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन 20 डिग्री, डी फॉर्म दे दिया, परसेंटेज डी फॉर्म 90%, एल फॉर्म जो है वो 10% है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस का एक ये भी फॉर्मूला है, सी डी। आपका कितनी एनेंशियोमेरिक एक्सिस, कौन सा फॉर्म ज्यादा है डी और एल में? सर डी। कितना ज्यादा है? 80%। 80%। ऐसे करोगे आप, परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज एल, दैट इज 80%। गुड। सो दिस इज योर एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अभी आपके पास एक फॉर्मूला है एनेंशियोमेरिक एक्सिस की, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा ऑब्जर्व दे दिया है, डिवाइड बाय अल्फा स्पेसिफिक इनटू 100। आपको कौन सी चीज कैलकुलेट करना है? अल्फा ऑब्जर्व। कैसे कैलकुलेट करोगे? अल्फा ऑब्जर्व इज इक्वल टू, ये एनेंशियोमेरिक एक्सिस आपके पास ऑलरेडी है 80%, स्पेसिफिक प्रोवाइड किया है 20, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक मल्टीप्लाई पे आ जाएगा यहाँ पे, तो वो दोनों लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100। कितना आंसर आएगा? 60. Okay, so this is the, now see another question is calculate enantiomeric axis. Calculate enantiomeric axis. You are given specific and observed rotation. चलो काउंट करके बताओ कितना आएगा। इसका भी एक फॉर्मूला है एनेंशियोमेरिक एक्सिस का, ऊपर ही लिखा है। सर 90%। गुड। 90%। वेरी गुड। तो वो 90% आएगा। अभी आपको एनेंशियोमेरिक एक्सिस तो चलो मिल गया, अभी आपको कंपोजिशन काउंट करना है, तो कैसे काउंट करोगे वो भी पूछते हैं। ये तो चलो 90% आ गया। अभी आपको डी और एल का जो मोल रेशियो है वो कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी फॉर्म कितना है और एल फॉर्म कितना है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उस केस में से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल इज इक्वल टू 100। ओके, और आपको पता है डी फॉर्म ज्यादा है, तो परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज एल जो है वो आपके एनेंशियोमेरिक एक्सिस हो जाएगा। वो कितना आया? ये तो पता है ना, ये आपका ये फॉर्मूला है, टोटल कंपोजिशन 100 होगा, और ये आपकी फॉर्मूला है एनेंशियोमेरिक एक्सिस की। तो अभी आपने बताया 90 है, मींस डी फॉर्म ज्यादा है, डी माइनस एल करोगे तो 90 आएगा। ओके, अभी आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, तो 2d इज इक्वल टू कितना आएगा? परसेंटेज 2d, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 190। सो d इज इक्वल टू 95।
95 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एल फॉर्म कितना बाकी रहेगा, दोनों का समेशन 100 है। 5%. So D form is 95, so L form is 5%. तो स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा आएगा दोनों का, अगर मोल रेशियो लेना है तो? 19:1. 19:1, 5 से डिवाइड करोगे तो ओके। एक बार नेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। So up to here, see this all are the, up to here it all are the nothing but these all are the example related to specific rotation. Now दूसरे जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी जो नेट एग्जाम में पूछे गए उसको सोल्व करते हैं। एक ये भी चीज आपको यहाँ बता दूं मैं, जो आपको पता नहीं होगा, सी व्हेनेवर यू आर गिविंग आरएस नोमेनक्लेचर, तो ऐसी तरह सपोज ब्रिज कंपाउंड दिया है आपको, साइक्लिक ब्रिज, ऐसे कोई भी ब्रिज कंपाउंड सी, तो उस केस में आपको ये जो लोअर वाला पोर्शन है ना, ये लोअर वाला कार्बन, ये कार्बन वो ऑलवेज आपकी नजदीक रहेगा, वेदर लाइन सिंपल लाइन दी है या तो डार्क लाइन दी है, सब लाइन डार्क देंगे ऐसे। सारे ग्रुप जो लोअर कार्बन पे है वो आपके नजदीक रहेगा, सी दिस आर दी इन योर साइड। यहाँ जो कार्बन है ये दिस इज अवे फ्रॉम व्यूअर, तो यहाँ ऊपर वाला कार्बन है, वहां चाहे सिंपल लाइन दिया है या नहीं दिया, वहां आपको रोटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट नीचे आपको कंपल्सरी रोटेशन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको इसका आरएस नोमेनक्लेचर देना है तो कैसे देंगे आप? चलो इसका आरएस नोमेनक्लेचर देना है तो एक नंबर किसको देंगे? यहाँ पे जो है वो एक नंबर आप किसको देंगे? सर कौन कार्बोनिल सा को। वाला सर? ये मतलब ये नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ये या यहाँ पे मिथाइल है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CO है, कौन से किसको एक नंबर देंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कार्बोनिल को। 2 नंबर यहाँ CH2 है, यहाँ पे भी CH2, यहाँ CH2 के साथ क्वाटरनरी कार्बन है, यहाँ CH2 के साथ CH2 है, यहाँ पे CH2 है, वेरेज यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन है, तो 2 नंबर किसको देंगे? ऊपर वाला जो ऊपर वाला इसको 3 नंबर और मिथाइल को 4 नंबर। यहाँ आपको कंपल्सरी सी डायरेक्शन चेंज करना है, मैंने पहले ही आपको बताया, व्हेनेवर सिर्फ 4th रैंकिंग ग्रुप नीचे वाले कार्बन के लिए आप नेमिंग कर रहे हो वैसे ब्रिज हेड कंपाउंड में, तो कंपल्सरी डायरेक्शन चेंज करना है। तो 1 to 2, 2 to 3 ये नियर साइड है, इसलिए 1 to 2, 2 to 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसका नेम है वो कैसा आएगा नेम? R। ओके यस सर। ओके चलो, यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला जो कार्बन है वहां पे 4 ग्रुप है, मिथाइल, CH2, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2, बट ये CH2 है जो वो कार्बोनिल के साथ ज्वाइंट है, सी। तो एक नंबर किसको देंगे? CH2 कार्बोनिल वाला कनेक्टेड टू कार्बोनिल। कार्बोनिल 2 नंबर इस CH2 को देंगे जो क्वाटरनरी, ये यहाँ पे कार्बन के साथ ज्वाइंट है, और 3 नंबर इस CH2 को, 4 नंबर मिथाइल को, इसी तरह सी है यहाँ पे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, CH के साथ ज्वाइंट है 3 नंबर, और यहाँ जो ग्रुप है वो 4 नंबर। ऐसे सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवो कार्बन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम व्यूअर। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर नो? यस सर। Yes, sir. सेम वे ये जो क्वेश्चन है जून 2011 का, इसका नेमिंग करेंगे यहाँ पे। ये काइरल सेंटर है, 2 काइरल सेंटर है, यहाँ ऑलरेडी नंबर दे दिया है, आप समझ लो, यहाँ नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड किया होगा पेपर में। 1 नंबर एंड 1 इज 1 नंबर एंड यहाँ पे 4 नंबर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। अगर 1 नंबर की बात करते हैं तो वहां मिथाइल ग्रुप है, CH है, CH2 है एंड कार्बोनिल है। 1 नंबर किसको देंगे?
किसकी बात कर रहा हूँ? Which one got number 1? कार्बोनिल The carbon ये ग्रुप को नंबर 1 देगी। 2 नंबर CH को देगी या CH2? is CH ओके, 3 नंबर CH2, 4 नंबर। मिथाइल चलो सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। 8 सर। आ रहेगा इसका नेम। चलो अभी ये लोअर वाला कार्बन है उसका नेम। एक नंबर किसको देगी यहाँ पे? CH2 है, CH2CO है, CHNH है। CH को CH को देगी, CH2O बाद में देखेगी। यहाँ CH है तो CH की प्रायोरिटी CH2 से ज्यादा है। यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, बट ये CH2 कार्बोनिल के साथ ज्वाइंट है तो यहाँ 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। एंटी क्लॉकवाइज है, बट नीचे हम कंपल्सरी जो लोअर कार्बन है वहां डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हाइड्रोजन अपर में R हो जाएगा। तो दिस विच वन इज करेक्ट आंसर? 1 R 4 R, दिस इज करेक्ट। इसी तरह से इसमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको चाहिए, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम है। आप पे दोनों काइरल सेंटर के नेम दे दो। पहले चलो ये मिथाइल वाला काइरल सेंटर है उसका नेम देना है, टॉप वाला। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? ऐसे कंपाउंड ऐसे, मिथाइल आपके नजदीक है, ये दूर है। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ कार्ब CO ग्रुप है, CH2 है, CH है एंड मिथाइल है। किसको 1 नंबर देंगे? सर कार्बोनिल carbon कार्बोनिल को 2 नंबर। 2 नंबर सिंक को मतलब कार्बन Water पोटेशियम ये 1 नंबर रहेगा। 2 नंबर CH को देगी इसको। हाँ ये 3 नंबर CH2, 4 नंबर मिथाइल। अभी मिथाइल डार्क लाइन पे दिया है तो अपनी साइड है तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो 1 2 2 2 2 3 AS है तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो R। R आ जाएगा। चलो इसके बारे में बताओ। क्वाटरनरी कार्बन ऊपर है और पास में 2 CH2 है। 1 नंबर किसको देंगे? ऊपर ऊपर देंगे ऊपर फर्स्ट या CH को, इसको 1 नंबर देंगे, ग्रीन कलर वाला और ब्लू हाँ कलर। अभी 2 CH2 है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। 2 नंबर किसको देंगे? left side. लेफ्ट सर क्योंकि वो कार्बोनिल से नजदीक है। ये 3 नंबर। यहाँ हाइड्रोजन को 4 नंबर। सर्कल ड्रॉ करो, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम अस। डॉटेड लाइन दिया है तो 1 2 2 2 2 3 आप सर्कल ड्रॉ करोगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, इट बिकम S, सो योर कंपाउंड बिकम RS। इसी तरह चलो ये जो सेकंड कंपाउंड है उसका भी नेमिंग करना है। सेकंड कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इनका भी नेमिंग करना है, तो कैसे करेंगे? सर पीछे वाले पे अगर करेंगे तो वही कार्बोनिल पे 1 पहले हम जो मिथाइल वाला कार्बन है उसका नेम करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन वाला, क्योंकि मिथाइल का कंपैरिजन आपको मिथाइल के साथ करना है, हाइड्रोजन वाला कार्बन है उसका कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ करना है। ऐसा ये हाइड्रोजन आपकी साइड है। नाउ विच वन गॉट नंबर 1? मिथाइल वाला कार्बन की बात कर रहा हूँ। कार्बोनिल से कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन है उसको 1 नंबर देंगे। 2 नंबर CH वाले कार्बन को, ओके। इसको 3 नंबर CH2, 4 नंबर मिथाइल। चलो सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। 8 सर मिथाइल ऑलरेडी अवे फ्रॉम अस, ओके, तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं। चलो लोअर कार्बन के 1 नंबर किसको देंगे? 2 CH2 है और 1 CH है। क्वाटरनरी सर मैं टर्शियरी ऊपर में जो है क्वाटरनरी ऊपर वाले कार्बन को इसको 1 नंबर देंगे। 2 नंबर इस CH2 को जो कार्बोनिल के नजदीक है। 3 नंबर इस CH2, 4 नंबर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपनी साइड है तो डायरेक्शन चेंज होगी। 1 2 2 2 2 3 R हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो S। इस जगह दोनों का नेम कंपेयर करो, इनका नेम भी RS है, इनका नेम भी RS है, तो कैसे रिलेशनशिप आएगी दोनों के बीच में? होमोमर सर होमोमर मींस आइडेंटिकल आइडेंटिकल, ओके। चलो अभी इस कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। 1 नंबर कार्बोक्सिलिक को देंगे, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके।
अभी क्वेश्चन ये है, इस साइड नंबर देंगे 4 5 6 या तो इस साइड 4 5 6, तो 6 कार्बन वाला एसिड है तो हेक्सेनोइक एसिड है, वो कंफर्म है। सवाल ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको हम कंसीडर करें हाईएस्ट प्रायोरिटी में, हेक्सेनोइक एसिड ले या हेक्साइनोइक एसिड। आइनोइक मींस ट्रिपल बॉन्ड ने को आपने प्रायोरिटी दी है, इनोइक मींस आपने अल्किन को प्रायोरिटी दी है। सी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आइन मींस अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, आइनोइक एसिड, हेक्साइनोइक एसिड, तो आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है। दूसरी चीज है इनोइक एसिड, इसका मीनिंग आपको आपने ये इसको प्रायोरिटी दी है। ओके, तो दो ऑप्शन ऐसे है जो आइनोइक एसिड है और दो ऑप्शन इनोइक एसिड है। सो रिमेंबर अल्किन हैज ऑलवेज हायर प्रायोरिटी देन अल्काइन। आप IUPAC में रूल्स देख लेना प्रायोरिटी का, तो उसमें अल्किन की प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा रहेगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अल्काइन को प्रायोरिटी देते हैं, बट अल्किन की प्रायोरिटी ज्यादा आती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आप बताओगे? ये चार में से दो कौन से दो ऑप्शन रहेंगे पॉसिबल ऑप्शन? A and B. 3 and 4. 3 and 4 ओनली, बिकॉज इट इज इनोइक एसिड। अभी देखो यहाँ इसको 4 नंबर देंगे, इनको 5 नंबर, ये 6 कार्बन वाला एसिड है, डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पे है, तो 5 इनोइक एसिड लिखा है, हेक्स 5 इनोइक एसिड। ये पता चल गया? Yes. Yes or no? अभी देखो कार्बन नंबर 3 पे ये ग्रुप है पूरा, जो 3 कार्बन वाला ग्रुप है, CH2CCH। इस ग्रुप का नेमिंग ऐसे करेंगे, C1, यहाँ से जो कार्बन ज्वाइंट है वो 1 रहेगा, ये 2 और ये 3। तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे प्रोप 2 आइनाइल। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइनाइल। अगर आप डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देते तो प्रोप 2 इनाइल हो जाता, बट यहाँ प्रोप 2 आइनाइल आएगा ये ग्रुप। ये सब बाकी सब तो सही है। अभी आपको डिसाइड ये करना है वेदर कायरल सेंटर 3 इज R और S। चलो एक नंबर किसको देंगे? यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ COOH है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, किसको देंगे? ओके, 2 नंबर किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ट्रिपल बॉन्ड वाले को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिप्लिकेटेड होता है, तो इस कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, ऐसा काउंट करना है। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, तो एज कंपेयर टू दिस, सो यू विल गिव द प्रायोरिटी टू ट्रिपल बॉन्डेड CH2 कार्बन, CH2 अटैच टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, दिस गॉट नंबर 2। इनको 3 नंबर देंगे, हाइड्रोजन को 4 नंबर। सर्कल ड्रॉ करो, 1 2 2 2 2 3। एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम अस, it is anti-clockwise. So which one is correct answer? D. D वाला करेक्ट है, गुड। चलो अभी यहाँ पे आपको यह फाइंड आउट करना है, सी कार्बोनिल है जे एनेंशियोमेरिक फेज, डायस्टेरियोमेरिक फेज, कौन से फेज से अटैक हुआ है कैलकुलेट करना है। सॉल्व करके बताओ। हाँ, हाँ। सर मिडिल ग्रुप की तरफ से अटैक हुआ है, सॉरी स्मॉल साइड की। देखो ये जो फर्स्ट वाला केस है, तो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से आप ऐड करते हो तो डेफिनेटली OH बनता है इसी तरह। तो इसका फेसिस कौन सा है, एनेंशियोमेरिक है, डायस्टेरियोमेरिक है, या तो कौन सा रहेगा ये कीटोन का फेस, वो पहले बताओ। एनेंशियोमेरिक से। एनेंशियोमेरिक रहेगा। ये क्या है कीटोन में, ये क्या है? ओ अच्छा, और एक कायरल सेंटर है, डायस्टेरियोमेरिक है। वो तो चेंज नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ पे होगा। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो H- यहाँ पे अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, स्मॉल साइज से अटैक करेंगे वो। ओके, तो ये फेज कौन सा है, डायस्टेरियो सिलेक्टिव, क्योंकि एक ऑलरेडी कायरल सेंटर है। सी मैंने आपको पहले ही बताया, इनका फेज जो है ये होमोमेरिक है कीटोन, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर कीटोन एसिमेट्रिकल है तो एनेंशियोटॉपिक है।
ओके, और तीसरी चीज ये बताई थी आपको कि एक ऑलरेडी काइरल सेंटर है तो इनके फेस डायस्टेरियो सिलेक्टिव, तो ये डायस्टेरियो सिलेक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सेंटर से चेंज नहीं होगा, यहाँ दो प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट दिया है 85%, दूसरी एक प्रोडक्ट होगी जो 15% होगी, बट वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। सी OH डार्क लाइन पे है, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज ऑन डॉटेड लाइन। ये भी चीज आपको बताया था, वो शॉर्ट रूल था, यहाँ पे चिलेशन नहीं होता है, तो कौन सी साइड से अटैक करेंगे? चिलेशन नहीं है, और ये कीटोन कैसा कीटोन है? CH2CH3 ऐसी ये ग्रुप जो है ना इथाइल, ये कीटोन ऐसे है ऐसी, दिस इज अ कीटोन, लुक एट हियर, ये CH2CH3 ग्रुप है, ये कीटोन एंटी है या सिन? ये दोनों में लार्ज ग्रुप ये है नीचे वाला, कहाँ पे सिन है? ये CH2 है, अभी CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3 है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि एंटी रहेगा? ये ग्रुप है ना, लार्ज ग्रुप है, ये मीडियम ग्रुप है, ये स्मॉल, ये आपका लार्ज ग्रुप हो गया, ये स्मॉल ग्रुप, और ये मीडियम। लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल एक दूसरे को एंटी है, एंटी होता है तो अटैक इज मेड फ्रॉम स्मॉल साइज। वेरी गुड, इसलिए ये हाइड्रोजन स्मॉल साइज है तो ये स्मॉल साइज से अटैक दिया है। चलो अभी ये देखना, ये अटैक कौन से फेस से हुआ, टॉप फेस से हुआ या बॉटम फेस से? बैक पीछे टॉप पीछे, बॉटम तो से। बॉटम फेस। अभी बॉटम फेस का नेम देना है, तो जो आपको फ्रंट वाला दिखाई देता है वो आपका टॉप फेस रहेगा। पहले आप टॉप फेस का नेम दे दो, उसके बाद इनका जो बैक साइड वाला है उसका अपोजिट लिख दो। चलो पहले आपको टॉप फेस का नेम देना है, तो एक नंबर किसको देंगे? एक नंबर तो मैं ऑक्सीजन को, OH नहीं, सी मैं कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ, कीटोन का नंबर देना है, कीटोन Yes. के फेस का। कार्बन है। ओके, 2 नंबर किसको देंगे? एरोमेटिक साइड वाला कार्बन या CH इथाइल वाला कार्बन? एरोमेटिक। और ये 3 नंबर, चलो सर्कल ड्रॉ करो, 1 2 2 2 2 3, R है या S? एस। एस है, तो ये आपका टॉप फेस एस हो गया, SI। तो बॉटम फेस कौन सा रहेगा? आरी। RE होगा। तो यहाँ आपने आप बताया कि बॉटम फेस से अटैक हुआ है, दैट मींस हाइड्राइड अटैक इज फ्रॉम विच फेस? RE फेस, ये भी करेक्ट है, और इट इज डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन, ये भी करेक्ट है। एनिसोटोपिक फेस नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए 2 and 3 आर करेक्ट, ये आंसर आएगा। आगे समझ में? यस और नो? यस सर। ओके गुड, यस सर। गुड, वेरी गुड। चलो इसके बाद ये जो है इनका जो ये पूरा कंपाउंड है काइरल, इनके साथ इसका रिएक्शन करोगे तो ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल रही है, ये इज ए मिक्सचर ऑफ 2 डायस्टेरियोमर, मिक्सचर ऑफ एपीमर्स, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस है। और ए इज ए रेसेमिक मिक्सचर, ए इज ए सिंगल एनेंशियोमर। कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको देखना है, बाद में लेके चलो, ये उसको छोड़ दो अभी। इसका चलो नेमिंग कर दो, ऊपर वाले का नेमिंग कर दो, ये अपने आप कर पाओगे, ऊपर डायरेक्शन चेंज करना है। इसका नेम देना है, इसको 1 नंबर दिया है, इनको 4 नंबर। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसी, तो हाइड्रोजन 1 वैलेंसी मिसिंग है, 4th वैलेंसी मिसिंग है, तो आपको हाइड्रोजन लेना है। कहाँ पे लगे हाइड्रोजन? आपकी साइड ही लेना चाहिए, सारे ग्रुप आपके नजदीक रहते हैं यहाँ पे। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चलो 1 नंबर किसको देंगे? अभी 4 नंबर के लिए बात कर रहे हैं हम। पहले चलो ये 1 नंबर का नेमिंग कर दो। 1 नंबर किसको देंगे 1 नंबर में? कार्बनिल कार्बोनिल, कार्बन, गुड। 2 नंबर? 2 नंबर ऊपर ब्रिज। ब्रिज वाले को, क्योंकि वो जो है वो क्वाटरनरी है। इसको 1 नंबर।
ये क्वाटरनरी को 2 नंबर, CH है यहाँ पे, यहाँ CH2 है, तो CH को 3 नंबर देंगे ना इसको। और ये सॉरी ये नहीं आएगा। 3 नंबर किसको देंगे, मिथाइल को देंगे या CH2 को? CH2 को सर, लेफ्ट वाले। गुड, ये 3 नंबर हो जाएगा। This is 3 number, this is 4. Now draw the circle from 1 to 2 to 3. Yes. Yes, so 1 number is yes. What's about 4 number? चलो 4 नंबर पे एक किसको देंगे, एक नंबर CH2CO है, क्वाटरनरी कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन सर, क्वाटरनरी कार्बन को 1 नंबर, 2 नंबर कार्बोनिल वाला, 3 नंबर और ये 4 नंबर। चलो डायरेक्शन चेंज होगी इसमें, 1 2 2 2 2 3 R हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो एस आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ये सारे एग्जाम्पल नेट एग्जाम के हैं, पूछे गए हैं। 1s 4s, ओके, इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, अभी जो मैं एग्जांपल यहाँ आपको शो कर रहा हूँ उसमें जो डार्क लाइन वाले ग्रुप है उसको मैं टॉप ऑफ द प्लेन दिखाता हूँ, अबव द प्लेन, और जो डॉटेड लाइन वाले ग्रुप है उनको बिलो द प्लेन कंसीडर करते हैं। तो आपको इस हिसाब से आंसर देना मेरे को। चलो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, HA एंड HB, तो HB को अबव द प्लेन, HA बिलो द प्लेन। यहाँ पे 2 ग्रुप है, कौन कौन से 2 ग्रुप? मिथाइल एंड Br, ऊपर मिथाइल आएगा, गुड, नीचे Br1, नीचे यहाँ Br2, ऊपर मिथाइल आएगा। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन Br1 एंड 2? दे आर होमोटॉपिक, एनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक? एनिसोटॉपिक। जो कि रीजन इज, गुड, रीजन इज सिग्मा प्लेन है, सेकंड काइंड ऑफ सिमेट्री है, सो दिस टू आर एनिसोटॉपिक। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 हाइड्रोजन A एंड B? गुड, क्यों डायस्टीरियोटॉपिक है? क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक मिथाइल की नजदीक है HB, दोनों मिथाइल की नजदीक है, HA है वो दोनों Br की नजदीक है, तो वो दोनों डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगा। तो ये आंसर करेक्ट रहेगा कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो डायस्टीरियोटॉपिक है एंड दोनों Br है वो एनिसोटॉपिक। आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द स्ट्रक्चर बी एंड मोड ऑफ एडिशन। यहाँ पे आप देखो एक चीज, ये Br है, काइरल सेंटर ऐसी, तो इनके फेस कैसे हो जाएगा बताओगे कोई? ये जो डबल बॉन्ड है उनके फेस सर डायस्टीरियोटॉपिक। गुड, अभी ये सेंटर चेंज नहीं होगा, मैं HBr ऐड कर रहा हूँ, सो एडिशन इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक। H प्लस यहाँ जाएगा, ये Br माइनस यहाँ पे आएगा, ज्यादा कार्बन है यहाँ पे, ज्यादा हाइड्रोजन, वहां H प्लस जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, यहाँ पे Br माइनस आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? Br इज बैक साइड और फ्रंट साइड। वेरी गुड, 2 पॉसिबिलिटी ये है, मेजर प्रोडक्ट जो भी हो बट पॉसिबिलिटी 2 है सिर्फ। बट एक कायरल सेंटर चेंज नहीं होगा, एक कायरल सेंटर सेम रहता है, दूसरा जो है वो चेंज होता है। तो इस हिसाब से आप ये दोनों प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप कौन सा आएगा? होमोमर, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। 50% पार्ट सिमिलर है, 50% अपोजिशन, सो दे आर डायस्टीरियोमर। तो आपको ये बताना है कि इसका जो A एंड B है प्रोडक्ट, उस बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो A एंड B आर डायस्टीरियोमर, गुड। चलो उसके बाद ये है इनका IUPAC नेम, ये जो कीटोन दिया है, सी दिस इज कीटोन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ COO इथाइल है। पहले IUPAC नेम दे दो, बाद में पता चलेगा इसका IUPAC नेम। पहले तो ये R है या S है, तो इसका नेमिंग देना है। तो 1 नंबर किसको देंगे? COOET। COOET, ओके। 2 नंबर? 2 नंबर डबल बॉन्ड सर। दिस गॉट नंबर 1, दो नंबर डबल बॉन्ड, 3 नंबर इनको, और ये 4, तो ये 1 2 2 2 2 3,
आर है या एस? एस। तो दो पॉसिबिलिटी रहेगी, दो में एस है, दो में आर था। तो आपका कार्बन नंबर 4, यहां से आप नंबर देंगे तो कार्बन नंबर 4 जो है, ये कार्बन नंबर 4 वो एस आएगा, 4s। और वहां कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी कार्बोनिल, या तो आप इथाइल कार्बोक्सिलेट, हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इथाइल कार्बोक्सिलेट। दो नंबर है। अभी डिफरेंस क्या है बी और डी में, वो आपको बताते हैं। बी और डी में से डिफरेंट ये है, यहाँ एच है, ये जो ग्रुप है आपका वो इथाइल कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं इथाइल कार्बोक्सिलेट। एक में यहां से सी नंबर दिया है इथाइल कार्बोक्सिलेट 1 2 3 4 5, सॉरी इसको जो है वो नंबर 1 इसको देंगे। यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इथाइल कार्बोक्सिलेट आपका पेरेंट कंपाउंड रहेगा। यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4। और दूसरे केस में नंबर दिया है जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है उस तरह से। इस केस में ऐसे आप नंबर देंगे तो इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर देंगे तो या ऐसे आएगा। इसी इथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप 4 नंबर पे है तो ये 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पे मिथाइल है। साइक्लोहेक्स 2 इनोन, दैट मीन्स आपने कीटोन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी, लास्ट में नेम में इनोन आया, लास्ट में नेम में इनोन आया मीन्स आपने कीटोन को प्रायोरिटी दी। ओके। दूसरा ये है, यहाँ आपने कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी दी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, कीटोन की या एसिड की? एसिड की सर। एसिड की। तो यहाँ से नेम आएगा इथाइल कार्बोक्सिलेट, एसिड वाला फर्स्ट। तो इस तरह नंबर देंगे तो कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पे ये काइरल है, उसका नेम एस आएगा, वो तो है एस। 2 नंबर पे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल। 4 नंबर पे ऑक्सीजन है मीन्स 4 ऑक्सो। साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन कार्बोक्सिलेट। कौन सा आंसर आएगा करेक्ट वन? कौन सा आंसर आएगा? डी सर। डी कैसे आएगा? डी, डी में किसको प्रायोरिटी दी आपने? बी सिर्फ बी बी। ओके, बी करेक्ट, गुड, नो प्रॉब्लम। चलो नाउ लास्ट जो है उसको आप रीड करो, ये जो है इनको रीड करो। चलो लेक्चर में epoxidation of R cyclohextuinol with per acetic acid is 95%। बता सकते हो कौन सा आंसर आएगा? ए और बी का सिर्फ आपको प्रोपोर्शन दे दिया है। साइक्लोहेक्सटुइनोल, ये साइक्लोहेक्स है, 2 पे इन है, ओके, 2 पे इन है। साइक्लोहेक्सिनोल है, यहाँ पे आर वाला है, ओ एच ग्रुप है ना, वो ऐसे आएगा सर इन ऑल। ओके, इन प्लस ऑल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड इनोल, 2 इनोल, 1 2 2 इनोल। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन आर है, इस एक नंबर इसको देंगे, 2 इनको, 3 इनको, ये आर आ जाएगा। दिस इज ए साइक्लो आर, साइक्लोहेक्स 2 इनोल। इसका आप ऑक्सीडेशन इपोक्सीडेशन करते हो, रिएक्शन कहाँ पे होगा? डबल बॉन्ड पे डबल सर। बॉन्ड। आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है, वन इज 95%, अनदर इज 5%। 50-50% नहीं, एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल रही है, जैसे क्रेम्स रूल देखा था हमने। कौन सा आंसर आएगा? चलो सर डायस्टेरियोमर्स। वेरी गुड, दिस टू आर डायस्टेरियोमर, दे आर इन अनइक्वल अमाउंट। एक डायस्टेरियोमर ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलेगा, एक ऑलरेडी कायरल सेंटर है, सो बी इज करेक्ट, गुड। चलो इस केस में आपको इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करना है, और इसका जो अटैक है वो कौन से फेज से हुआ है वही। पूरा क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, थोड़ा पोर्शन मिसिंग है।
ओके, ये जो फोटोग्राफ्स है ना उसको मैं एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा। ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा। अभी ये पूरा क्वेश्चन बनेगा ऐसे। सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ बी एंड मोड ऑफ एडिशन। आपको ये बी जो है इनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है ये, और मोड ऑफ एडिशन। बी का स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? सी ये बी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, कैसे अटैक करेगा बी? ये आपका सपोज समझो बी है, ये ऐसे अटैक करेगा सी यहाँ पे, तो इसका कन्वर्जन OH में हो जाएगा। ओके, इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, नाउ दूसरी चीज ये आपको देखना है, ऐसी ये इनोलिक फॉर्म है, समझ लो ये इनोलिक फॉर्म है, इसको आप कीटो फॉर्म भी लिख सकते हो। कीटो फॉर्म आप ऐसे लिखोगे, ऐसे कीटो फॉर्म भी लिख सकते हो। ओके यस सर। गुड, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अभी ये कीटोन कौन सा हो जाएगा, सीन है या एंटी? सिन। सीन। तो आप देखो 2 केस में एंटी बताया है, 2 में सीन है। ये सीन है, ये भी सीन है, और ये एंटी है, ए एंटी। चिलेशन तो होता नहीं है। अगर सीन कीटोन है तो अटैक कौन सी साइड से होगा? अटैक इज यहाँ, आप देखो ये यहाँ पे देखो OH ग्रुप जो यहाँ बन रहा है ये OH ग्रुप है, दैट मीन्स आपने ये जो ग्रुप ज्वाइंट किया है वो बैक साइड से अटैक करेगा। ऐसे ये कार्बन ज्वाइंट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो एक चीज तो ये समझ लो कि ये डार्क लाइन पे OH बन जाएगा, तो अपोजिट साइड से अटैक हुआ है। अपोजिट मीन्स अटैक कौन सी साइड से हुआ? डॉटेड लाइन। कौन सी साइड? जो स्मॉल ग्रुप है स्मॉल वो। साइड। ओके, स्मॉल साइज से अटैक हुआ है। स्मॉल साइज से कब अटैक होता है? कीटोन कौन सा है? सीन है तब। ओके, ये कीटोन जो है वो सीन है, तो सीन ज्योमेट्री जो है उस केस में हमने पहले ही देखा था कि एंटी और सीन ज्योमेट्री। तो सीन ज्योमेट्री अगर आपको लार्ज ग्रुप एंटी है तो अटैक स्मॉलर साइज से होता है। अगर लार्ज ग्रुप जो है वो सीन है कार्बोनिल से, सीन कीटोन है, तो अटैक इज मेड फ्रॉम मीडियम साइज। एक्चुअली मीडियम साइज से अटैक होना चाहिए, सी मीडियम साइज से। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन है, आपको ये कीटोन देखने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ये देखना है आपको सी, ये कीटोन कौन सा कीटोन है? फिनाइल वाला। सीन। ये सीन है, गुड। तो यहाँ पे अटैक कौन सी साइड से होगा? सीन है तो मीडियम से। मीडियम साइड से होगा। ये मिथाइल है जिस साइड में, उस साइड से अटैक होगा। वो बाद में देखते हैं, पहले चलो ये कीटोन है, इसका इसके स्टीरियो देखते हैं। ये कीटोन जो आपका है इनका नेमिंग करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एंड मोड ऑफ एडिशन। एडिशन कैसे हुआ? RFS से हुआ, SFS से हुआ, कैसे एडिशन होता है? सो दिस इज C1, 2 नंबर इसको देंगे 2, A3। इनका टर्न कैसा आएगा? टॉप फेस कैसा रहेगा? एस 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 आई। ऐसा आएगा, बट हमको पता है अगर सीन है तो एडिशन होना चाहिए मीडियम स्मॉल साइज से। कहाँ से? सॉरी मीडियम साइज से। स्मॉल की ये दोनों एंटी है तो स्मॉल साइज से अटैक करते हैं, बट ये दोनों सीन है तो एडिशन एक्चुअली होना किस साइड से चाहिए? मीडियम साइड से। मीडियम साइज से। बट यहाँ पे अटैक मीडियम साइज से नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। ये OH डार्क लाइन पे मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया वो डॉटेड लाइन होगा, तो अटैक उन्होंने बैक साइड से किया है।
ये हाइड्रोजन जिस साइड है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सी, तभी कार्बोनिल OH है वो डार्क लाइन पे आया, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो कहाँ से हुआ, स्मॉल। ये देखो ये स्मॉल, ये जो है OH जिस साइड पे बनेगा उसके अपोजिट में अटैक हुआ होगा। सपोज ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ से ऐसे अटैक करेगा तो OH डार्क लाइन पे बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से साइड से अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने बैकग्राउंड बैक से। साइड से, मीन्स इन्होंने स्मॉल साइज जो ग्रुप है वहां से अटैक किया है, ये स्मॉल साइज वाला ग्रुप है उस साइड से। तो ये तो आपका डॉटेड लाइन पे है, तो ये कौन सा फेस हो गया, डॉटेड लाइन है न्यूक्लियोफाइल का। तो बॉटम पे। अभी फ्रंट फेस का नेम क्या है, या फ्रंट आपने यहाँ पे फ्रंट फेस का नेमिंग कर दिया है, साई। साई फेस है, तो फ्रंट फेस कौन सा रहेगा, ये बॉटम फेस, फ्रंट जो है री। टॉप फेस वो साई है, तो वो री फेस रहेगा। तो ये आपका सी री फेस है कीटोन का, ये री फेस। ओके, दूसरा ये देखना है, ये जो कीटोन है उसका मोड ऑफ एडिशन, यहाँ जो कीटोन फॉर्म हुआ उसके लिए देखो इसका फेस कौन सा है, ये नए कीटोन जो बन गए यहाँ पे, ये 1 2 नंबर इसको देंगे, ये 3 नंबर, ये कौन सा फेस है, इसका टॉप फेस, री फेस सर। ये टॉप फेस री फेस है, बट इन्होंने अटैक तो बैक साइड से किया ना, इन्होंने भी अटैक बैक साइड से किया, तो इसका भी फेस जो आएगा वो कौन सा होगा, एसआई फेस होगा, ऐसे ये एसआई फेस आएगा। ये जो आपका इसलिए इसकी सॉरी रिएजेंट की बात करते हैं, ये रिएजेंट है, चलो समझ लो ये रिएजेंट है, तो इसका ये नंबर 1 इसका नेम दे दो, जो रिएजेंट है उसका फेस, ये कौन सा फेस आएगा, यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। चलो कौन सा फेस आया, बी जो रिएजेंट है उसका, ये फेस कौन सा फेस है, साई फेस। साई फेस। इसलिए आपको से ये जो है ना वो ये कीटोन का फेस है, कीटोन या तो अल्डिहाइड जो भी दिया है वो, उसका री फेज यूज होता है, और ये जो है आपका रिएजेंट बी का फेज है वो साई फेज यूज होगा। तो यहाँ एडिशन जो है दोनों के बीच में हो रहा है, इसमें बी जो है वो उसका साई फेज यूज करेगा, ये है इनका री फेज यूज करेगा, तो ये इंटरमीडिएट रहेगी और ये इसका ऐसे आएगा। ओके, रिएक्शन तो ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, यहाँ पे आपको सिर्फ फेस ही मेंशन करने हैं। ये भी कीटोन है, ये कीटोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसे, ये जो रिएजेंट आपने बी लिखा है ना, बी इज ऑल्सो कीटोन। बी अगर आपको बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, अगर आपको बी के लिए जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसे बी के लिए, एक तो ये स्ट्रक्चर है जो सीन वाला, वो करेक्ट है, वो हमने पहले ही चूज कर लिया, अदर दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे था। ओके, अभी सीन वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीन वाला जो रिएजेंट है उसमें से जो रिएजेंट मिलेगा आपको ये ऐसे मिलेगा रिएजेंट, तो उसके लिए कौन सा फेज आता है, एसआई फेज, और इसमें से जो रिएजेंट मिलता है उनके लिए फेज आएगा इसका भी टॉप फेज वही रहेगा, सी 1 2 3, वो भी ऐसा ही रहेगा, चाहे कोई भी ले लो आप। ओके, सो दोनों में ऐसा ही फेज है, बट ये करेक्ट रिएजेंट है सीन वाला। शॉर्टेक इज मेड फ्रॉम आर और ऐसा ही फेज। इसमें बताओ, चलो दो कायरल सेंटर है, फर्स्ट में नेम क्या है इसका, एक कायरल सेंटर एक डबल बॉन्ड है, या कायरल सेंटर में हाइड्रोजन किस साइड ले लो, above the plane, एबोव द प्लेन। चलो एक नंबर किसको देंगे, OH, 2 नंबर डबल बॉन्ड, 3 नंबर CH3, 4 नंबर H। बताओ आर है या एस, S, तो 2 नंबर का कार्बन है, ऐसे मीन्स ऑप्शन डी और ए करेक्ट। अभी डबल बॉन्ड कौन सा है, जेड है या ई, ट्रांस है या सिस, ई है सर। ई एल्किन है, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। ओके, ई डबल बॉन्ड ई एल्किन है मींस 2s3e, ई वाला
7 फिनाइल, ऐसे नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स हेप्टेन। 2 नंबर पे अल्कोहल है तो 2 ऑल, 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन हेप्टेन, 3 इन 2 ऑल। 7 नंबर पे फिनाइल रिंग है तो 7 फिनाइल। बट आपको सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करनी है। आप स्टीरियो केमिस्ट्री करेक्ट लिखोगे तो नेम अपने आप मिल जाएगा। यहाँ नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री आप करेक्ट मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिक इसका नेम है वो आ जाएगा। अभी आप एक काम कीजिए, मैं जो पूरा प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ, इसमें बाकी के जो एग्जाम्पल है ना, इसको आप थोड़ा, ये हो गए यहाँ से आप थोड़ा ट्राई करना। ये मैंने कल करवा दिया था, फेल्किनान रूल। ओके, बाकी बच्चे एग्जाम्पल जो है इतने, ये सारे एग्जाम्पल वो आज आप थोड़ा ट्राई करना और शाम को मेरे को बताना अगर सोल्व नहीं होता है तो। ओके, ट्राई करोगे ना? ओके यस ये सर। प्रेजेंटेशन भेज दे तो आप थोड़ा इनको ट्राई करना, और अगर नहीं सोल्व होता है तो आप डेफिनेटली बताना। तो शाम को प्रोबेबली प्लान है सिमेट्री स्टार्ट करने का, बट बिफोर स्टार्टिंग सिमेट्री आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार सोल्व करो, और इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होता है वो मैं रिपीट करवाऊंगा, उसके बाद हम सिमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सर। joining in this lecture. Thank you all. ठीक है सर।